Hello students, yesterday we finished under the basic concepts of microeconomics. We have done with want and its characteristics also we have done. Classification of wants also we finished with it. Now the second basic concept in economics is goods and services. These are the popular terms in the economics. Goods and services, both the term is very popular. Anything that satisfies human wants is termed as a good. सामान, जिसे हम बोलते हैं सामान, ये सामान चाहिए, ये गुड चाहिए, राइट? ये टीचर वाला वेरी गुड नहीं है, ये दिस टर्म इज फॉर थिंग. Okay, so anything that satisfy human wants is termed as a good. It has a material existence, means it is having a physical existence. ये आपको दिखाई देगा, आप इसको टच कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं. You can see this. For example, if we give example, chalk used by a teacher is a good for teacher, which she used to write on the board. Okay, so chalk is a good thing. It is a thing. It is a thing which satisfy the need of a teacher to write on the board. To write on the blackboard, teacher needs chalk. Then the second term is service. Services also satisfy human wants, but do not have any material existence. It means what? That you cannot see services. It's invisible in nature. तो दिखाई नहीं देती है सर्विसेज. यू कैन फील द सर्विस बट सर्विस यू कैन नॉट सी. यू कैन नॉट सी इट एज इट इज नॉट हैविंग एनी मेटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस. इट इज नॉट हैविंग एनी शेप. इट इज नॉट हैविंग इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस, I can say. Now for example, teaching offered by a teacher. Now when teacher offers you teaching, she is serving you, she is giving service to you. You can feel her service, that how she is teaching. You can see teacher, but teacher is not a service. The lecture given by teacher is a service given to you by the teacher. So that lecture you can feel, but it is not having any physical existence. Okay, so here the goods and services, this is very popular. These are both the terms are very popular terms in economics. Now the next term in basic economics is utility. The word utility, it is a capacity of a commodity. It is a capacity of a commodity to satisfy what? So it is a capacity of a commodity to satisfy human wants. Human की जो इच्छाएं हैं, wants है, will है, उनको fulfill करने का जो power है, satisfy करने की जो power है, उसको utility बोलते हैं. It is a capacity. Utility is a capacity of human wants or want satisfying power of a commodity. It's a capacity to fulfill human wants. That power is known as the utility. Once again, see, the utility means what? Capacity of a commodity. Any commodity which is capable, which is able, जो able है, कैपेबल है, क्या करने के लिए? सेटिस्फाई करने के लिए. टू सेटिस्फाई व्हाट? ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एबल है, सक्षम है, कैपेबल है. और वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर जिस कमोडिटी में होता है कि जिसको पाने के बाद में एक संतुष्टि होती है, तो उस कमोडिटी की जो वॉन्ट सेटिस्फाइंग कैपेबिलिटी है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं. दैट इज नोन एज utility. Now the next term in economics is value. Next basic term is value.
ना वैल्यू हैज टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स। वैल्यू के दो अप्रोचेस है इकोनॉमिक्स में। एक तो है वैल्यू इन यूज, कि आप उसको यूज कर रहे हो तो वो क्या है, उसकी यूजफुलनेस है, वो उसकी वैल्यू है। एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, कि आप एक्सचेंज कर रहे हो, उसकी वर्थ, उसको खरीद रहे हो, उसको परचेज कर रहे हो, उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटी, तो वो हुआ वैल्यू इन एक्सचेंज। अभी वैल्यू इन यूज का अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जितने भी फ्री गुड्स है, हाँ, फ्री गुड्स जैसे आप एयर, सनशाइन आप एंजॉय कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एयर एंजॉय कर रहे हो, हाँ, तो उसको आप यूज कर रहे हो, इसकी वैल्यू है यूज करने पे। वैल्यू इन यूज, इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। ये है ना, किसी भी, ये बहुत वैल्यूएबल कमोडिटी है जिसको मतलब आप पैसा देके नहीं खरीद सकते हो। इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। इन सिंपल वर्ड, इट इज यूजफुलनेस, इट इज यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, नो वन हैज टू पे, आपको इसके लिए पैसे नहीं देना है, नो वन हैज टू पे प्राइस फॉर द सनशाइन। जो सूरज हमको रोशनी दे रहा है, लाइट दे रहा है, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने हैं, बट उसकी जो वैल्यू है वो इमेंस वैल्यू है, मतलब उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है हमारे लाइफ में। इट इज हैविंग इमेंस वर्थ। वी से इमेंस वर्थ मीन्स एक्सट्रीम वर्थ इन आवर लाइफ। सनशाइन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? विदाउट सनशाइन वी कैन नॉट लिव, राइट? डे एंड नाइट के लिए भी फॉर्म होने के लिए सन का सेट होना एंड सनराइज होना जरूरी है। सनराइज हुआ है तो सनशाइन, जो लाइट, जो हमको नेचुरल लाइट मिल रही है नेचर से, वो मिलनी जरूरी है, राइट? सो इट इज हैविंग इमेंस वर्थ इन आवर लाइफ। इट इज हैविंग इमेंस वर्थ फॉर लाइफ एंड इट कैन नेवर बी डाउटेड। हम इसको डाउट कर ही नहीं सकते, इसको हम कोई पैसे में नहीं तोल सकते, इसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है। ओके, सो इन इकोनॉमिक लैंग्वेज सनशाइन हैज अ हाई वैल्यू। इसकी वैल्यू बहुत हाई है, यू कैन नॉट इवन पे फॉर इट। इसके लिए आप पे नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पे। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्री गुड। ये फ्री गुड का एग्जाम्पल है कि ये जो फ्री गुड है हमको अवेलेबल है नेचर में और हम सब इसको एंजॉय करते हैं एंड ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ वैल्यू इन यूज टर्म। द अदर टर्म इज वैल्यू इन एक्सचेंज। अब ये वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी की कोई कमोडिटी, जो कोई गुड है, कोई सामान है, उसकी कितनी वर्थ है, और वो कोई सर्विस अगर आप ले रहे हो तो उसकी कितनी वर्थ है। वर्थ इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एक्सचेंज में। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है, उसकी वर्थ फाइंड आउट की जाती है इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटीज। अदर कमोडिटी के कंपेयर में फाइंड आउट की जाती है। जैसे कि व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जब इसको हमको टर्म्स ऑफ मनी में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज कॉल्ड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो इसको जब व्हेन वी एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में, प्राइस के टर्म में हम लेके आते हैं तो उसको प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बोला जाता है। और अगर आप किसी गुड के साथ एक्सचेंज करते हो तो वो बार्टर सिस्टम में हुआ करता था। ओके, सो यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिसाइड होती है। अगर आप उसको एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी तो उसकी प्राइस, उसकी बोली लगती है, पैसे वाली बोली। ओके, सो अ गुड विच कमांड्स अ प्राइस, जिसके ऊपर कोई सामान है, कोई कमोडिटी है जिसपे कमांड होती है पैसे की, विच कमांड्स अ प्राइस, जो है ना एक पैसा अपना डिसाइड कर सकती है, अपनी बोली लगा सकती है इन टर्म्स, इज टर्म्ड एज अ इकोनॉमिक गुड। उसको हम इकोनॉमिक गुड बोलते हैं। इकोनॉमिक गुड ही वही होता है ना जो जिसकी ना इन टर्म्स ऑफ मनी जिसकी वैल्यू होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक गुड्स होता है जो फ्री, जो मतलब जिसके लिए हमको पैसे नहीं देने होते हैं, वी डोंट हैव टू पे फॉर इट, राइट? और जहाँ पे पेमेंट वाली बात आती है, जहाँ पे प्राइस है ना किसी भी चीज का, कमोडिटी का प्राइस उसको कमांड करता है, उसके ऊपर रूल करता है, तो को हम इकोनॉमिक गुड बोलते हैं। उसको हम इकोनॉमिक गुड बोलते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, तो वो हमें एक्सचेंज में मिलता है कि एक हाथ से पैसा दो और दूसरे हाथ से आपको जो सामान चाहिए वो लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए टीवी एंड कार,
ये जब तक कोई आपको गिफ्ट नहीं कर रहा है तब तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। आप अगर परचेस करने जा रहे हो तो यू हैव टू हैव मेक पेमेंट फॉर इट। आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है आप इंस्टॉलमेंट पे लो, आप क्रेडिट कार्ड से लो, लेकिन आपको इसका पेमेंट तो करना है। तो ये हुआ वैल्यू इन एक्सचेंज। द नेक्स्ट टर्म इज वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। अभी यहाँ पे ये जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, कुछ कमोडिटीज होती है जिनके जब आप उसको यूज करते हो वैल्यू इन यूज बहुत हाई होता है, वैल्यू इन यूज इज वेरी हाई। जैसे कि मैं अगर आपको पानी की कीमत बता दूं तो यूज करने के टाइम में उसकी वैल्यू बहुत हाई है, इट इज वेरी मच वैल्यूएबल, बट लो एक्सचेंज वैल्यू, लेकिन उसकी एक्सचेंज वैल्यू है वो लो है, कम है, जैसे कि पानी। और जहां पे अगर मैं बोलूं डायमंड का एग्जाम्पल, यहाँ पे जो नाम ही हमने टर्म को ही नेम दिया है कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। डायमंड है ना, उसका एक्सचेंज वैल्यू बहुत हाई है। इट्स एक्सचेंज वैल्यू मतलब इसकी प्राइस आपको बहुत हाई है, आपको बहुत बड़ी अमाउंट पे करके आपको ये डायमंड मिलेगा। लेकिन आप अगर उसकी यूज बोलो तो आप उसका यूज क्या है आपके लाइफ में? एक स्टोन, इट इज अ स्टोन। आप इसके ज्वेलरी बना लो, आप इसको इसका नेकलेस में यूज कर लो, फिंगर रिंग बना लो, लेकिन इसकी जो वैल्यू इन यूज है वो बहुत लो है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स स्कैरसिटी, एक तो ये कम, बहुत रेयर अवेलेबल है, इसके वजह से इसकी जो एक्सचेंज रेट है वो तो काफी हाई है, एक्सचेंज रेट तो काफी हाई है, लेकिन इसकी वैसे भी हम लोग इसके रेगुलर लाइफ में हमारे लिए इतने नेसेसिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ नेसेसिटी कि डायमंड हो नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं है, राइट। बट जहां पे वाटर की बात आती है, इसकी एक्सचेंज वैल्यू तो बहुत लो है। एक तरीके से हम इसके लिए कुछ भी पे नहीं करते, नहीं के बराबर हम पेमेंट करते हैं। वाटर बिल हमारा बहुत मतलब नहीं के बराबर सोसाइटीज में जो वाटर का बिल आता है वो बहुत, उसका वैल्यू है, जो प्राइस है वो बहुत लो है, लेकिन उसके जो यूज है वो काफी हाई है, इसका जो यूज है वो काफी हाई है। तो इस पर्टिकुलर टर्म को वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज बोला जाता है कि डायमंड खरीदने जाओ तो काफी महंगा है, वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन इसके लाइफ में कोई नेसेसिटी, इसका कोई हाई यूज नहीं है, इसका जो यूज है वो लो है इन कंपेयर टू वाटर। वाटर को जब आप परचेस एक तरीके से कर रहे हो तो इसके लिए नहीं के बराबर पेमेंट कर रहे हो, लेकिन इसकी जो वैल्यू इन यूज है वो काफी हाई है। तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे फिगर भी दिया है, फिगर के थ्रू भी दिखाया है कि जब आप इसके लिए पेमेंट कर रहे हो वाटर के लिए तो काफी लो पेमेंट हो रहा है, लेकिन इसका यूज काफी है वाटर का। और वही डायमंड खरीदने के लिए आप पे वजन पड़ जाएगा, यू हैव टू पे हाई अमाउंट। इसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो काफी हाई है, क्योंकि ये रेयर मिलता है, ड्यू टू स्केर्सिटी ये रेयर गुड है, ओके। तो इसके लिए आपको हाई अमाउंट पे करना है, लेकिन इसकी जो वैल्यू इन यूज है वो काफी लो है। अगर एक बार आपको डायमंड नहीं मिला तो चल जाएगा, लेकिन पानी तो चाहिए ही चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए, आपको कुछ फाइंड आउट करने के लिए बॉक्स में दिया है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड। तो वाटर इन रिवर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सनशाइन, ये तो आप सभी देखो, वाटर इन रिवर ये फ्री हुआ, राइट। ऑक्सीजन सिलेंडर बोले तो ये इकोनॉमिक गुड हुआ, इसके लिए आपको सिलेंडर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे। सनशाइन है, ये फ्री गुड हुआ। वाटर प्रोसेस्ड फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए जो बॉटल में भर के आता है, राइट। हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हम कहाँ पे पार्क में जाते हैं, हम पिकनिक जाते हैं, तो हम जब मिनरल वाटर परचेस करना पड़ता है हमको, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो ये इकोनॉमिक गुड हो गया, ओके। देन द नेक्स्ट इज गिवन एज एयर। तो एयर जो ओपनली हमको नेचर से मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको हम फ्री गुड बोलते हैं। तो दिस इज हाउ ये जो है फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड के एग्जाम्पल्स हमने देखे। अभी आगे फिफ्थ टर्म जो इकोनॉमिक टर्म है वो है वेल्थ।
नेक्स्ट पेज पे ये जो वेल्थ क्या है, वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ रिफर्स टू एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू, कोई भी चीज, कोई भी सामान जिसकी मार्केट वैल्यू हो, मतलब उसको अगर आप बेचने जाओ तो कोई खरीदार है, ओके, एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, तो उसको आप एक्सचेंज में, उसके एक्सचेंज में आप उसको सेल करके आप पैसा ले सकते हो, मनी ले सकते हो, कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, इट इज टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ. अ कमोडिटी मस्ट possess the following characteristics. कोई भी कमोडिटी है उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब उसके फीचर्स क्या होने चाहिए. एक तो वो कब आपको हाई वैल्यू देगा पता है, जब कोई कमोडिटी यूजफुल हो. पहली बात तो यूटिलिटी, जिसकी कैपेसिटी हो आपकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब आपको किसी चीज की इच्छा हो तो वो चीज आप खरीद रहे हो तो वो आपको जो डिजायर डेवलप हुई है, जो विल डेवलप हुई है, उसको सेटिस्फाई करने की कैपेबिलिटी उस प्रोडक्ट में होनी चाहिए. और वो सेकंड पॉइंट उसका फीचर क्या होता है किसी भी वेल्थ को या कमोडिटी को पजेस करने के लिए. सेकेंड पॉइंट, वो स्केर्स होनी चाहिए, मतलब वो रेयर होनी चाहिए, स्केर्सिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बहुत ऐसे ही उसका सप्लाई फ्लो होते जा रहा है, राइट. जब आप डिमांड कर रहे हो तो वो रेयर होना चाहिए, सप्लाई उसका रेयर होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू हाई होते जाती है फिर. ओके, देन ट्रांसफरेबिलिटी, वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, इजीली ट्रांसफर कर सको आप. जब आप उसको सेल करने जा रहे हो, आप उसको एक्सचेंज करने जा रहे हो विद द मनी, तो इट शुड बी इजीली ट्रांसफरेबल. देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, एक्सटर्नलिटी. वो आप उसको ट्रांसफर करो और वो दूसरे ह्यूमन बॉडी तक, मतलब ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी, मतलब ये किसी और के हाथ तक पहुंच जाए, कोई अपने घर तक ले जाए, उस तरीके से उसकी ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सटर्नलिटी होनी चाहिए. तो यहाँ पे यूटिलिटी, कमोडिटी, ऑलरेडी यूटिलिटी टर्म को तो हमने स्टडी किया कि ये क्या होता है, कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. तो यहाँ पे फर्नीचर, अगर किसी घर में फर्नीचर नहीं है तो अगर उसकी इच्छा है फर्नीचर खरीदने की तो फर्नीचर खरीदेगा. वो फर्नीचर वो खरीदेगा, वो फर्नीचर उनकी जो विल है उसको सेटिस्फाई करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसमें. अगर किसी को ठंडा पानी पीना है, राइट, किसी को सामान स्टोर करने के लिए किचन में फ्रिज चाहिए, रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर क्या है, वो यूटिलिटी को सेटिस्फाई करेगा कि ठंडा पानी प्रोवाइड करेगा. ओके, अभी स्केर्सिटी पे जब हम आते हैं तो वो अ कमोडिटी मस्ट बी स्केर्स इन सप्लाई. मतलब अभी देखिए, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो उसमें आप देखिए कि है ना, हम ऑर्डर्स करते हैं, हम जो भी हमारा ऑर्डर प्लेस करते हैं हम, तो उसमें से कुछ ही सामान हमको घर तक मिल पाता है. क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में जो सप्लाई है वो कम है, गुड्स का, प्रोडक्ट्स का सप्लाई कम है डिमांड के कंपेयर में, इन रिलेशन टू इट्स डिमांड. मतलब सभी लोग स्टोर करके रखना चाह रहे हैं सामान सभी स्टोर करके रखना चाह रहे हैं, तो वो उसकी डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम हो गई है, तो वो स्केर्स हो गया प्रोडक्ट. तो फिर इफ इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ वेल्थ, अगर हम किसी वेल्थ में इसको इंक्लूड करते हैं तो ऑल इकोनॉमिक गुड्स फॉर विच प्राइस इज पेड, मतलब इसके लिए हमको पेमेंट करना है, प्राइस पे करना है. इसीलिए देखो मार्केट में जो गुड्स स्केर्स होते हैं उनके रेट्स भी हाई होते हैं, उनकी वो कमोडिटी की जो प्रोडक्ट्स की हमको जो पेमेंट करना है वो भी हमको हाई पे करना है. तो वो स्केयर, अगर कोई भी गुड स्केयर्स है तो उसके लिए हम ज्यादा भी पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले वो हमारे लिए कितना यूजफुल है या नहीं है. जैसे डायमंड है ना, हर एक जन को क्या खाने में काम नहीं आता है, बट खरीदना चाहते हैं सभी, और जब कैपेबिलिटी होती है खरीदने की तो वो हम परचेस करते हैं, हाई रेट पे भी परचेस करके रखते हैं, लेकिन उसका जो यूजफुलनेस है वो कम है इन कंपेरेटिव टू अदर विच आर द बेसिक प्रोडक्ट्स, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, बेसिक है, नेसेसिटी है, उसके कंपेयर में उसका लो वैल्यू होता है. नाउ ट्रांसफरेबिलिटी, अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ, कमोडिटी बेच रही हूँ, सेल कर रही हूँ, मेरी कोई वेल्थ सेल कर रही हूँ, तो मतलब कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, तो वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफरेबल होना चाहिए और प्लेस टू प्लेस भी ट्रांसफरेबल होना चाहिए. मेरे घर से दूसरे घर तक ले जाए या मेरे शॉप से दूसरे शॉप तक ले जाए, इस तरीके से. या अगर किसी ने लैंड खरीदी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफरेबल होने चाहिए. इफ द गुड इज मटेरियल और टेंजिबल, मटेरियल और टेंजिबल मतलब
वो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो दिखाई देने वाला गुड्स हो, टेंजिबल गुड्स हो, इनटेंजिबल ना हो। इनटेंजिबल तो आपने देखा ना कि इनटेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम खाली फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले चीजें। ओके, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अगर वो मेटेरियलिस्टिक गुड होगा, टेंजिबल होगा, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे व्हीकल हुआ, ज्वेलरी हुआ, एक्सेट्रा, एग्जाम्पल के तौर पे। अभी एक्सटर्नलिटी, अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। अभी है ना, ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल का मतलब, अगर कोई पर्सन मान लो अपना कोई ऑर्गन है डोनेट कर रहा है या सेल कर रहा है, किडनी दे रहा है, तो वो उसकी बॉडी से रिमूव करके वो दूसरे के बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई गुड की बात, अगर अदर देन दिस आती हूँ मैं ये, तो वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल हो। ऐसा नहीं है कि कोई अपना, ये तो एग्जाम्पल मैंने हॉस्पिटल का जस्ट दे दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, कोई अपना कोई वेल्थ सेल कर रहा है, अपनी कोई वेल्थ, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल होनी चाहिए, उसकी ह्यूमन बॉडी की एक्सटर्नल होनी चाहिए, ताकि उसको आप इजीली ट्रांसफर कर सको। जैसे किसी को अपना कोई बिजनेस, बैग्स का बिजनेस चला रहा है, तो उसने बैग सेल कर दिया, चेयर सेल कर दिया, उसने फर्नीचर सेल कर दिया, तो ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स हो गए। ओके, ये जो वेल्थ है, ये जो प्रॉपर्टी है, वो एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी हो गई। तो इस तरीके से ये जो वेल्थ रिलेटेड ये टर्म्स, यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी, इसके अंडर में इसको और हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वेल्थ को सेल करने के टाइम पे, परचेज करने के टाइम पे, कमोडिटीज के को परचेज करने के पहले हम ये फीचर्स स्टडी करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के पहले हम देखते हैं ना कि वो कितना स्केर्स है, कितना रेयर है, उसकी यूटिलिटी क्या है, वो ट्रांसफरेबल है कि नहीं है, वो एक्सटर्नल है कि नहीं है। Do you know, in this, inborn qualities like beauty, melodious voice, efficiency, etc. are not wealth in the strict sense of economics. मतलब everyone is having inborn qualities. Some are very beautiful. So by taking part in beauty contests, by acting in the movies and dramas, they can earn. Melodious voice. Example, if I give Lata Mangeshkar, by singing songs she can earn. Then efficiency, those who perform well, they can make more money by working harder, by doing their efficient work with the help of efficient work. These are not, but these qualities are not wealth in the strict sense, but by using this quality we can generate money. These qualities are neither external, these are not external and not transferable. You cannot give it to others कि चलो come on, you take my melodious voice, or you are my efficiency, you take. This transferability is not possible in this inborn qualities. It is not possible. Inborn qualities everyone is having. We can just share our ideas, but we cannot transfer our inborn qualities to in others. Now the sixth one is personal income. Now when it comes to the personal income, earnings received by a person from all sources is called his personal income. From all sources, what does it mean? Some are working in the company after their shift from job. When they come home, they sit at home and they do extra hard work to earn extra money. So from that source also they gain money. Then some get the rent from their extra house. As they have given on rent पे एक्स्ट्रा हाउस दे दिया है, उन्होंने रेंट पे दिया है, तो वहां से उनका रेंट आया घर का, वो रेंट भी उनकी इनकम हो गई। फिर किसी ने अपने ना वैन या कार है वो रेंट पे देके रखी है, उन्होंने हायर करने के लिए दिया हुआ है किसी को, तो वो चार्जेस उनको मिले, तो वो भी एक पर्सन की इनकम हो गई। तो इस तरीके से जितने भी सोर्सेस से मनी जो आ रहा है, अर्निंग रिसीव हो रही है, वो उस पर्सन की पर्सनल इनकम होगी। Okay, then the next one is personal disposable income. Personal disposable income क्या होती है? It is that part, ये वो पार्ट है personal income का which is left over, जो बच जाता है, left हो जाता है, which is left over
आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जब आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्सेस पे कर देते हो, जो टैक्स आपको पे करने हैं वो सब आप पे कर देते हो, और फिर उसके बाद में जो इनकम टैक्स पे करते हो और वेल्थ टैक्स पे करते हो, लाइक डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया, इनकम टैक्स पे किया आपने, वेल्थ टैक्स पे किया, उसके बाद जो इनकम बच जाती है उस इनकम को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोला जाता है. इट इज नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. नाउ you should know following are the various types of income. ये जो नीचे दिए हुए जो इनकम्स हैं वो बहुत अलग अलग टाइप्स के इनकम है, वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम है. जैसे फिक्स्ड इनकम विच रिमेन्स स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक लंबे समय तक, पीरियड ऑफ टाइम तक जो इनकम रहती है, स्टेबल रहती है, जिसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, चेंजेस नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इनकम बोलते हैं. जैसे रेंट, किसी को किसी शॉप का रेंट मिल रहा है, ऑफिस का रेंट मिल रहा है, वेजेस मिल रही है, तो ये क्या हुआ, फिक्स्ड इनकम हुआ. देन फ्लक्चुएटिंग इनकम नेक्स्ट इज व्हाट. फ्लक्चुएटिंग इनकम किसको बोला जाता है, जिसमें ना चेंजेस होते रहते हैं, ओवर अ टाइम चेंजेस चलते रहता है. नाउ इनकम विच इज नॉट फिक्स्ड बट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, अगर बिजनेसमैन को प्रॉफिट सेम एक जैसा प्रॉफिट नहीं होता, उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं. ओके, तो इट कैन बी पॉजिटिव. तो ये जो फ्लक्चुएशंस है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव टाइप के भी हो सकते हैं, कि मतलब आपका जो है ना, आपने क्या लॉस हो गया आपके बिजनेस में, तो वो हो गया नेगेटिव. पॉजिटिव, जब आप है ना एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर रहे हो, मोर देन योर वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उससे ज्यादा आप अर्न कर रहे हो, तो वो प्रॉफिट हुआ आपको, तो उसको आपने पॉजिटिव बोल दिया. एंड जीरो, जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कहानी हो गई, कि आपने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन उस पर ना तो आपको कोई लॉस हुआ और ना ही कुछ आपको इनकम जनरेट हुई, तो ये हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस. तो इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग इनकम. देन नेक्स्ट इज मनी इनकम. मनी इनकम क्या होती है, इट इज द इनकम रिसीव्ड इन एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री. आप इंडिया में रहते हो, तो इंडियन करेंसी में जो आपको मनी मिलती है, इनकम जो मिलती है, उसको आप करेंसी जो मिलती है आपको एक्चुअल करेंसी, उसको आप मनी इनकम बोलते हो. इन अदर वर्ड्स इट इज द इनकम इन कैश. ये कैश इनकम हो गई, कि आपको कैश में इनकम मिली ₹5,000, तो ये आपका मनी इनकम हो गया. देन रियल इनकम किसको बोला जाता है, इट इज द परचेसिंग पावर ऑफ इनकम. मनी इनकम, ये परचेसिंग पावर हुआ, मनी इनकम का परचेसिंग पावर हुआ, कि आपके पास जो मनी है, इनकम है, उससे आप क्या क्या परचेस कर सकते हो. कमोडिटीज परचेस आउट ऑफ मनी इनकम. आपने मनी इनकम से क्या क्या कमोडिटीज परचेस की, उसको हम रियल इनकम बोलते हैं. Then next is contractual income. Contractual income, this income is paid as per the terms and conditions of contract. For example, rent, wages, etc. तो इस terms में this income is paid as per the terms and conditions of contract. For example, rent, वेजेस एक्सेट्रा. तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया, कि हाँ आप 11 महीने तक के लिए आपको ये शॉप हमने रेंट पे दी है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना हमने, कि 11 महीने के बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट फिर से बनेगा, फिर ही आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो, आप रेंट पे रह सकते हो, आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो. और वेजेस, जो वेजेस फिक्स जो होती है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि हाँ आपको डेली का, आप है ना एक महीने तक काम करो, डेली का आपको 500 रुपया वेजेस मिलेगा, या 300 रुपीज यू विल गेट एज अ वेजेस. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम बोलेंगे इसको. देन नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, रेसिडुअल इनकम. रेसिडुअल इनकम कौन सी होती है, इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स. आप सारे के सारे पेमेंट्स कर देते हो, जो भी आपको जहां पे भी पेमेंट्स करना है, टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब यहाँ पे आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात आई, तो क्या हुआ, लैंड, लेबर, लैंड, लेबर, आपको जो इंटरेस्ट पे करना है, तो ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुए. तो उसमें जितने भी आपको पेमेंट्स करने हैं, वो पेमेंट आपने करने के बाद, ले दे के बाद में जो भी पैसा आपका बचता है पीछे, रेसिडुअल इनकम होती है उसको. जैसे कि एग्जाम्पल, तो उसको हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉफिट. जैसे आपने ले दे के सब आपने अपनी खर्चा लगाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स आपने फाइंड आउट की, आपने जितने भी पेमेंट्स पे करने थे पे कर दी, उसके अगेंस्ट जो जो देना था दे दिया, लास्ट में जो बच गया वो प्रॉफिट है. तो बच गया, लास्ट में बच गया, तो उसको रेसिडुअल इनकम बोला जाता है. तो वो एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट, अगर आप बिजनेसमैन हो तो वो प्रॉफिट हो गया आपके लिए. देन अर्न्ड इनकम किसे बोलते हैं, इनकम ऑब्टेन्ड आफ्टर
पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, आप है ना कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके जो इनकम अर्न करते हो, हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्नड इनकम बोलते हैं। इनकम ऑब्टेन्ड आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज नोन एज अर्नड इनकम। फॉर एग्जांपल आपका अर्नड इनकम में क्या हुआ, रेंट हुआ, वेजेस हुआ, इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ, दीज आर ऑल व्हाट अर्नड इनकम हुई। प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के बाद जो भी इनकम होती है उसको अर्नड इनकम बोलते हैं। देन अर्नड इनकम कौन सी होती है, अपोजिट ऑफ अर्नड इनकम इज अर्नड इनकम, दैट इज इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेस, और सारे के सारे जितने भी सोर्सेस है, विदाउट इंडल्जिंग इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन आपको मिली, जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड कभी कभी आपको गेन हो जाता है, जिसे बोलते हैं विंड फॉल गेन्स। क्या विंड फॉल गेन्स, ये है ना अनएक्सपेक्टेड गेन है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। कभी अभी देखो मार्केट में शॉर्टेज ऑफ सप्लाई चल रहा है, तो बहुत सारे ग्रोसरी शॉप वाले हैं, उनको क्या हो रहा है, विंड फॉल गेन हो रहा है, विंड फॉल गेन हो रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, मार्केट में माल नहीं है, मार्केट में माल नहीं है तो वो एक्सपेंसिव रेट पे सेल कर रहे हैं, हमको ज्यादा रेट पे सेल कर रहे हैं, फिर भी हम उनको पेमेंट कर रहे हैं बिकॉज वी नीड द प्रोडक्ट्स। तो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई शो करके वो हमको जो गेन कर रहे हैं, वो जो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, उसको विंड फॉल गेन्स बोलते हैं। एंड द एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा लॉटरी प्राइजेस, ये लॉटरी प्राइजेस का रेगुलर इनकम नहीं है या कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हुए हैं, वो ये जस्ट आप बोलते हैं ना कि बाय लक बाय चांस आपको ये मिला है, तो इसको अर्न इनकम बोला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये जो यू शुड नो एंड 7 पॉइंट जो बेसिक टर्म्स थे वहां तक हमने कवर अप किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देखिए काफ़ी मतलब यहाँ पे थोड़ा लेंदी ही है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी आपके लिए। यहाँ पे आप अभी रीड करना स्टार्ट कर दीजिएगा, और अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।